So, good morning all. And so today we finally start our classes. And today we are going to start with our syllabus. But before the syllabus, we have to see some parts, some important events that have happened in the world, right? How the present day का जो states है, how do they came into existence? What is the story behind all these existence of the different states, right? So my friend, before we formally start this course of political science, understand that political science is the study of different states, right? Different states means different countries. Different countries of the world के स्टडी को हम लोग पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं, बट ये बहुत वेग डेफिनेशन है. और पॉलिटिकल साइंस का सिंपल मीनिंग ये हो गया कि हाउ डू वी और व्हाई डू वी कंपेयर. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई डू वी स्टडी डिफरेंट कंट्रीज? वी स्टडी डिफरेंट कंट्रीज टू कंपेयर द डिफरेंट कंट्रीज. यस और नो? एंड कंपैरिजन का मेन पर्पस क्या है? द मेन पर्पस ऑफ कंपैरिजन इज so that we could reach to a better system. Yes sir, yes or no? What is the best practice? What is the best solution? क्या है सबसे best practice in some way? That is why we read political science. Now we will not go into the detail of the subject. Forget that we are reading political science for the next 2-3 days. Okay? Just forget everything. The things that we will be reading today, I will give you some dictation also, some history part. It is not political science at all. Okay? So sit with a very relaxed mind. Now, हम लोग सबसे पहले आज क्या करने जा रहा है? We are going to see that how the modern day states they came into existence, and in the past पॉलिटिक्स का स्टडी का शुरुआत कहाँ से हुआ है, या क्यों हमको पॉलिटिक्स पढ़ना जरूरी है, या कैसे पुराने जमाने के जो स्टेट्स हैं उन्होंने कैसे अपने आप को ऑर्गेनाइज किया. ठीक है? तो देयर आर 4 different kinds of states, 4 different kinds of independent state system that has been there in the past. और पूरे के पूरे पॉलिटिकल साइंस में हम लोग जिस भी कंट्री के बारे में पढ़ेंगे, चाहे मॉडर्न, चाहे एंशिएंट, चाहे मेडाइवल और चाहे प्रेजेंट कंटेम्पोररी, इन सारे कंट्रीज का जो पॉलिटिकल सिस्टम है कुल मिला के, या इंटरनेशनल सिस्टम है जो ग्लोबल पॉलिटिक्स का सिस्टम है, वो 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम में हमको देखने को मिलेगा. गेटिंग इट? मींस हिस्ट्री हैज इवॉल्व्ड ओवर द 4 डिफरेंट फेजेस. Either you call it 4 different phases or 4 parallel phases, right? Some parts of the countries, some parts of the world, they followed one particular phase, other parts followed other political phase, right? So कौन से वो 4 system है? This is the most important point that we have to see, right? So don't write away. I'll tell you when to write. The first most important system is all the states in this world, right? They were categorized, they can be categorized into 4 different systems. The first system is independent state system, right? Now the word is clear. Independent state system means what? Every state was independent on its own, right? They had their own particular system. They all have our own central system, right? जैसे आज के डेट का इंडिया है, इंडिपेंडेंट स्टेट है, सुनो, सॉवरेन स्टेट है, कंप्लीटली पावरफुल है. तो पास्ट में भी कुछ स्टेट ऐसे थे. उसके बाद हम लोग जब वर्ल्ड ऑर्डर में आगे बढ़ेंगे तो वी विल फाइंड दैट द सेकंड टाइप ऑफ स्टेट दैट वी सी इज हेजेमोनिक सिस्टम. हेजेमोनिक या हेजेमोनी, राइट? हेजेमोनी स्टेट सिस्टम. नाउ व्हाट इज हेजेमोनी? डोंट वरी, वी विल नो. एंड द थर्ड टाइप ऑफ स्टेट इन द पास्ट इज नोन एज इंपीरियलिस्ट स्टेट सिस्टम. ये 3 मेन सिस्टम हैं, और इन 3 मेन सिस्टम के बाद एक ट्रांजिशनरी वाला सिस्टम आता है जिसको हम लोग बोलते हैं 4th सिस्टम, जो देखने को मिला हमको, है ना? कब, कैसे, किस सेंचुरी में, विल कम टू दैट, राइट? बट लार्जली अंडरस्टैंड स्टेट्स इन दिस एंटायर वर्ल्ड, be it ancient times, medieval times, modern times, can be categorized, can be grouped into 4 different types, either independent or hegemony or imperialist, and at last we have the 4th type which is known as feudal state. Feudal state system. First of all, we will know the meaning of all these 4 types of states. Secondly, we will try to apply the learnings of this particular types into the history of the different kingdoms that we will study.
Okay, so first we are going to study the types of political system, the types of global system that is there in this, that is there in this, that is there in this, and that is there in this. Okay, after this we will go on to the world history part. और वर्ल्ड हिस्ट्री में हम लोग मुख्यतः 5 अलग अलग किंगडम्स के बारे में पढ़ाई करेंगे. सबसे पहले we will study about the Persian Empire. Okay, it is not at all important for your political science, but indirectly whatever we will learn here, those things are very very important, right? They are indispensable. Okay, so Persian Empire, पर्शिया आज के डेट में अगर आप जानिए, राइट, आज के डेट में पर्शिया पुराने समय का एम्पायर था. तो प्रेजेंट टाइम में कैन यू टेल मी विच कंट्री के ऊपर आज का मॉडर्न डे, मतलब मॉडर्न डे पर्शिया क्या है आज के डेट में? ईरान. वेरी गुड. सो मॉडर्न डे इज ईरान. ओके, जस्ट अंडरस्टैंड इट ऑन द वर्ल्ड मैप. ओके, पर्शियन मैप ईरान. ईरान का एक बॉर्डर कैन यू से इंडिया है, मोर और लेस. वन साइड इंडिया इज देयर, वेरी क्लोज बाय टू ईरान. These things you have to know, right? Secondly, the second empire that we are going to see is the ancient Greece. ग्रीस को ही हम लोग बोलते हैं ग्रीक, राइट? और यहीं से मेसोपोटामिया का कल्चर बेसिकली शुरू होता है, जो हम लोग हिस्ट्री में इंडस वैली के समय में पढ़ते हैं. ये भी मोर और लेस देखिए तो सेंट्रल एशिया और यूरोप के बीच का एक लिंक है. गेटिंग इट? ग्रीस के नीचे है टर्की, होगा. सो टर्की को हम लोग सिक मैन ऑफ यूरोप बोलते हैं, होगा, क्योंकि टर्की इज इन एशिया ऑल्सो, टर्की इज इन यूरोप ऑल्सो. सो मोर और लेस मॉडर्न डे टर्की के ऊपर के आसपास के एरिया को एंशिएंट ग्रीस हम लोग बोलते हैं. तो हम लोग इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे एंशिएंट ग्रीस की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंशिएंट ग्रीस. ओके, आफ्टर एंशिएंट ग्रीस द थर्ड किंगडम दैट वी विल सी इज द रोमन एम्पायर. ओके, द फोर्थ किंगडम दैट वी विल सी आफ्टर द रोमन एम्पायर इज द इंडियन एम्पायर. और इंडियन एम्पायर में हम लोग देखेंगे इंडिया की जो एंशिएंट हिस्ट्री है, सेम टाइम की हिस्ट्री, मतलब एंशिएंट हिस्ट्री यहाँ पे क्या चल रही है, सेम टाइम पैरेलल टाइम में, पैरेलल यूनिवर्स में व्हाट इज हैपनिंग इन ग्रीस, पैरेलल यूनिवर्स में व्हाट इज हैपनिंग इन पर्शिया, पैरेलल यूनिवर्स में व्हाट इज हैपनिंग इन द रोमन एम्पायर. आर यू गेटिंग इट? उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे एंड विल कम टू द साउथ एशियन एम्पायर. साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया you can call it. And at last we will see a transition phase. We will see Europe. Why, my friend? Because the history of the world is the history of the Europe. Getting it? So every history is incomplete if you don't study the history of Europe. Reason is because all the history books that has been written, all the literature that has been written by the Britishers, that has been written by the Europeans. Getting it? So that is why Europe का एक hegemony रहता है शुरू से हमारे हर discipline में. Right? European scholars, European scientists, every time we praise the European scientists, not because our education system is to blame for, because we were also a part of a European colony, right? We were 200 years तक, 200 साल तक हम लोग यूरोप का कॉलोनी रहे ना, yes or no? So that's why this is यूरोप का हिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे, medieval Europe and कैसे कैसे ट्रांजिशन शुरू होता है. So this is going to be our itinerary for the next 2-3 classes. Is it clear? After this we start with our subject, that is political science. Now, first of all we have to understand what is independent state system, what is hegemony state system, what is imperialist state system, and what is feudal state system, right? After understanding these 4 systems we will try to understand the history of this. और हिस्ट्री मैं बताऊंगा और आप बताएंगे कि पर्शियन एम्पायर इन चारों में से कौन सा सिस्टम फॉलो करता था. Are you getting it? Once we study the history of Greece, once we study the history of Rome, you will tell me कि इनमें इन हिस्ट्री को पढ़ते हुए लिखते हुए, I will tell you something, okay? इन हिस्ट्री को पढ़ते हुए लिखते समय इन चारों में से कौन सा स्टेट सिस्टम इनके ऊपर अप्लाई होता है. ओके, पर्पस क्या है इसका? पर्पस ये है टू नो सम इवेंट्स एंड टू नो दिस टर्म्स. ओके, नाउ हेजेमनी मींस वेरी पावरफुल बॉडी. आप इसको लोकल लैंग्वेज में इसको समझ जाइए, वीटो पावर जिसके पास. वीटो पावर किसी के पास क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द फीचर्स, बिकॉज ऑफ द मनी, बिकॉज ऑफ द वेल्थ, बिकॉज ऑफ द रिसोर्सेज दैट पर्सन हैज. ठीक है, बहुत ज्यादा अगर आप कोई कमा रहा है, मुकेश अंबानी कम्स इनटू दिस हाउस, कम्स इनटू आवर क्लास, सो ऑब्वियसली वी ऑल विल स्टैंड बाय डिफॉल्ट. तो ऑब्वियसली उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा है मुकेश अंबानी के पास, तो हमारी क्लास में जो भी डिसीजन वो लेंगे मोर और लेस हम लोग इन्फ्लुएंस हो जाएंगे उस डिसीजन से, है ना. सो हु इज अ हेजेमॉन? हेजेमॉन इज अ वेरी पावरफुल बॉडी. Simply you understand this.
who has the ability to influence others. Okay, so what is independent hegemony, imperialist dependence? उसके पहले आने के पहले tell me one thing, my friend, everyone. You tell me, forget this, you tell me what is the similarity between a street dog जो दिन भर गली में घूमता है, fine, and what is the similarity between a street dog and a crow, कौवा या चिड़िया, and also what is the similarity between the person who is going to office at 9 a.m. in the morning and coming at 4? इन तीनों के बीच में सिमिलैरिटी क्या है अगर मैं आपसे बोलूं? एक स्ट्रीट मॉन्गर, एक बर्ड और एक पर्सन हु गोज टू जॉब एवरी डे, व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन ऑल दीस थ्री पीपल? हाँ, अर्निंग व्हाट? अर्निंग व्हाट? दे आर लुकिंग फॉर फूड ना? Yes or no? They are looking for surviving, fine. And surviving, they are looking for surviving via, they are looking for food, if you say. All three, is it certain that all three of them will succeed in their goal in that day? No. Means there is competition. Why there is a competition, my friend? Why there is a competition? Yes, because there is a scarcity. Very good. And since there is a scarcity, neither the crow nor that person nor that dog can be sure that they will return full. Their scarcity will be fulfilled. ऐसा तो नहीं होने जा रहा है ना? It is uncertain, right? Once it is uncertain, my friend, can we say that there is uncertainty? होगा uncertainty. और जब हिस्ट्री शुरू हुआ, या मैनकाइंड का जब हिस्ट्री शुरू हुआ, तो एवरीवन स्टार्टेड विथ वन पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन. ऑक्यूपेशन मींस बोलिए या प्रोफेशन बोलिए, या सबसे पुराने जो आदमी लोग थे वो लोग किस तरह का काम करते थे? हु वर दे? वर दे एग्रीकल्चरलिस्ट, वर दे पास्टोरलिस्ट, और वर दे हंटर गैदरर्स? हंटर गैदरर्स, यस और नो? सो द वर्ल्ड स्टार्टेड विथ हंटिंग एंड गैदरिंग. कोई डाउट है इसमें? No. The world started with hunting and gathering. Wait, I'm taking you to some very deep philosophical aspects, not at all important for exam directly, but I'll tell you how indirectly. So सबसे पहला जो सिचुएशन था हमारा दोस्त हंटिंग और गैदरिंग का था. अगर आप हंटिंग गैदरिंग पे निकलते हैं, so is it sure, is it certain that you will get some animals? No. Uncertainty is there. Getting it? Very complex relationship is there between scarcity and uncertainty. सोच के देखिए, अनसर्टेनिटी वर्ड का ऊपर फोकस करिएगा लाइफ में भी. अब अगर अनसर्टेनिटी नहीं है हमारे लाइफ में, विल वी गो टू चर्च? विल वी गो टू तिरुपति टेम्पल? विल वी गो टू कामाख्या टेम्पल? अनसर्टेनिटी इज रिक्वायर्ड. यस और नो? इट्स इंपॉर्टेंट. बट हंटिंग गैदरिंग में जो डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी है पुराने टाइम्स में, is it more or less in compared to present times? Today we are more uncertain or our ancestors are more uncertain? Think. Today and some 10,000 years ago, who was more uncertain? They were or we are? They were. Means were less, science was less. Getting it? Resources were less. Uncertainty was high. और hunting gathering में जब uncertainty high होगा, तो what will happen? People will gain experience, and when there is uncertainty, when there is scarcity, there is necessity, and necessity is the mother of invention. They say. We all know this fact or not? So hunting और gathering में uncertainty था, और इस uncertainty को solve करने के लिए human beings they assembled themselves. Reason आया उनके मन में, they motivated themselves, and after motivation they did a innovation, and that innovation led them to domesticate animals. यही हुआ ना? यही हुआ होगा कि खोजने से जंगल में अच्छा है कि कुछ जानवरों को domesticate करो, and once you domesticate the animal, you will call them, animals will go, animals will come to you. Once you shoo the animal away, the animals will go. मतलब बहुत जबरदस्त साइंस हो गया domestication of animals. इसी तरीके से सोसाइटी आगे बढ़ी है ना. So once there was uncertainty,
people shifted to something known as pastoral what can we say that? What do we say this word? Pastoral livestock will be more economic term. I want to say people entered into a pastoral civilization. Okay, although that's not a correct word, but still we are understanding the meaning, right? कि हम लोग हंटिंग गैदरिंग से पास्टोरल सिविलाइजेशन पे गए, जहां आदमी लोग एक जगह रहने लगा और जानवर लोग कहां ग्रुप में चलने लगे. फाइन. सो व्हेन एनिमल्स आर मूविंग इनटू ग्रुप, ट्राई टू अंडरस्टैंड, व्हेन एनिमल्स आर मूविंग इनटू ग्रुप टुगेदर, हर्ड में जा रहे हैं वो लोग, इकट्ठा कर रहे हैं, डोमेस्टिकेट कर रहे हैं हम लोग, उनसे फायदा ले रहे हैं, उनको खाना भी खिला रहे हैं, वो मदद भी कर रहे हैं. व्हेन एनिमल्स आर मूविंग इनटू अ ग्रुप, अनसर्टेनिटी इज वेरी हाई. रीजन इज डाइंग चांसेस आर मोर. एपिडेमिक का सिचुएशन हो सकता है. फुट एंड माउथ डिजीज के बारे में सुना है आप? फुट एंड माउथ गाय में होता है, राइट? कैटल्स में होता है फुट एंड माउथ. एक बार एक दो जानवर को अगर हो गया तो उस पूरे झुंड में सबको हो सकता है. Within 2-3 days, the entire cattle का herd will collapse. Are you getting it? Yes or no? So after domestication, after pastoral civilization, people started moving from here and there along with their herd. In winter season, in summer season, they started moving. Right? Migration शुरू हुआ, इधर से उधर, इधर से उधर. But उस migration में भी there was an uncertainty. Uncertainty किस चीज का? Disease का. Uncertainty किस चीज का? Epidemic का. पूरा का पूरा herd गायब हो सकता है. तो ये जो अनसर्टेनिटी हम लोग देखते हैं लाइफ में, ये अनसर्टेनिटी हमेशा इकोनॉमिक सिस्टम के साथ, पॉलिटिकल सिस्टम के साथ, सोशल सिस्टम के साथ, एवरी सिस्टम के साथ अनसर्टेनिटी इज देयर. ये सुनो, द मोर वी मूव, द मोर कॉम्प्लेक्स आवर लाइफ बिकम्स, अनसर्टेनिटी इंक्रीजेस. फुट एंड माउथ डिजीज जो उस समय हुआ करता था, जब पूरा कैटल खत्म हो जा रहा है, आज की डेट में कैन वी से दैट? स्टॉक मार्केट का एग्जांपल लीजिए. आज की डेट में एक किसी इन्फ्लुएंसर को सुन के सारे के सारे लोग स्टॉक खरीदने लगे, राइट? और सारे के सारे लोग जब स्टॉक खरीदने लगेगा तो अचानक से व्हाट हैपेंस? द स्टॉक प्राइसेस विल प्लमेट, इट विल गो डाउन, मार्केट विल क्रैश, यू विल क्रैश, एवरीवन विल क्रैश. अनसर्टेनिटी है. तो कैन वी से दैट मॉडर्न डे स्टॉक मार्केट इज मोर और लेस सिमिलर टू द एंशिएंट टाइम्स का फुट एंड माउथ डिजीज? More complex, the system becomes more complex, uncertainties become more complex. And when uncertainties are there, whenever there is uncertainty, the growth of my friend, uncertainty will lead to the growth of religion. Getting it? This is the most simplest understanding that you have to have. People are uncertain, people turn to God. As simple as that. Once pastoral civilization का there was uncertainty, people look for other options. और इसके बाद जो स्टेज आया, this stage continued till 20th century almost. अभी भी it is continuing. So which stage did we enter into after this? We entered into agricultural civilization. और ये एग्रीकल्चरल सिविलाइजेशन जब हम लोग आए तो आज से लेकर अभी तक फिर 20th सेंचुरी, जब तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आ रहा है, राइट, या मोर और लेस हेवीली इंडस्ट्रियलाइज्ड एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है, तब तक आज के डेट तक हम लोग बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चर सिविलाइजेशन के ऊपर हमारा डिपेंडेंट है. हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री दो तरीके से हम लोग पढ़ेंगे. पहला हिस्ट्री है जो पास्टोरल सिविलाइजेशन के पहले था, जो हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है. मेन हिस्ट्री हमारी शुरुआत होती है कहां से? जब इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में तीन चीज मिलते हैं. क्या क्या? अर्बनाइजेशन, फाइन, आयरन एज, एंड ऑब्वियसली इंडिया के केस में भी कॉल आर्यनाइजेशन. फाइन. सो अर्बनाइजेशन, आयरनाइजेशन एंड आर्यनाइजेशन, आर्यन इन्वेजन व्हेन हैपेंड. इंडिया में सिविलाइजेशन का स्टार्ट होता है. कौन सा सिविलाइजेशन? एग्रीकल्चर सिविलाइजेशन. It is not only about India, my friend, but in the entire world, agriculture is the bedrock. Agriculture is the cradle of human civilization and human settlement. और यहाँ से uncertainty को बहुत हद तक हटा दिया. लेकिन agriculture is dependent on rain, right? You go and ask the farmers. हमारे घर में जाइए, हम लोग तो ज्योग्राफी में मॉनसून पढ़ते हैं ना, right? We know the मौसम, we know the soil.
बट हमारे एंशिएंट फार्मर्स हैं, उनके हिसाब से बारिश कब होती है? When God wants. अरे सुनो, there is uncertainty ना, so uncertainty gives a ground for religion का growth. So religion का growth है उनके पास. अगर आप उनको समझाइएगा कि साइंस से होगा बारिश, है ना? There is a geography behind this. There is a science behind rain. Would they listen to you? They will not listen to you. Try to understand this. Same thing happened in ancient Greece. Same thing happened in Rome. Same thing happened in Persia. But more strongly, this thing happened in Rome. वहां पे लोग जो एग्रीकल्चरलिस्ट थे, कुछ जो पढ़े लिखे लोग थे, उन लोगों ने बोला कि नो नो नो, रेन डज नॉट हैपन बिकॉज ऑफ गॉड. डोंट एसोसिएट रेन विद गॉड. राइट? इंडिया का किंगडम पढ़ेगा तो पूरा का पूरा जो हिस्ट्री है इंडिया का, एंशिएंट हिस्ट्री, पूरा का पूरा रिलीजन पे बेस्ड है. बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी, पीपल इन ऑर्डर टू कोप विद अनसर्टेनिटी दे गो द रिलीजन वे. रोम में जब बोला गया कि एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन रेन एंड रेन डिपेंड्स ऑन साइंस, राइट, रेन डिपेंड्स ऑन ज्योग्राफी, पीपल प्रोटेस्टेड. व्हिच पीपल प्रोटेस्टेड? द चर्च प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दैट. द चर्च सेड, व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग अबाउट? So church started punishing those people who introduced science, who introduced reason. और चर्च जिसको पनिश कर रही है, obviously those people will protest. अरे सुनो, people who have learned knowledge, they will protest. And जो लोगों ने प्रोटेस्ट किया रोम में, उनको हम लोग बोले प्रोटेस्टेंट्स. Getting it? So प्रोटेस्टेंट्स का ग्रोथ वहां से होता है, because they went against the church. चर्च क्या कह रहा है? भगवान. और रोमन जो कैथलिक जो रिलीजन है, कैथलिक रिलीजन, उसमें क्या होता है? दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कैथलिक में, जीना और मरना, बर्थ एंड डेथ. Whenever you have taken birth, you will be baptized, right? How will you be baptized? Your parents must donate some amount, generous amount to the church. Why they have to be baptized? Because नियम बनाया गया कि अगर आपका जन्म शुद्ध नहीं है, right, then life is uncertain. डराया गया. So life is uncertain. So baptism का concept शुरू हुआ. और दूसरा concept आया death. Whenever you die, you have to be buried in the church itself. तो आपका कब्रिस्तान चर्च में होना है. ये दो चीजें लाई गई, शुरुआत किया गया कैथलिक्स द्वारा. Protestant means the one who protested against this logic. They said that rain does not happen because of the church. We can directly pray to the God and rain will come. Church is not required in that. So they protested against the established ideology. And the moment they protested, they were called Protestants. So this is Europe that we are talking about. Later times, यूरोप में साइंटिफिक रेवोल्यूशन बहुत लेट आया when compared to India. Are you getting it? In 14th century they came. तब तक यूरोप में क्या था? There was darkness. Why there was darkness? Because Europe believed mostly on God, and God means church. Church means Catholics. और यहीं से कहानी शुरू होती है मार्टिन लूथर किंग. So many things are intertwined. बट बेस आइडिया पॉलिटिकल साइंस शुरू करने का पहले इतना जानिए कि सबसे पहले का जो सिविलाइजेशन है वो हंटर गैदरर्स का है. फिर पास्टोरल में गए और पास्टोरल के बाद हम लोग एग्रीकल्चर सिविलाइजेशन में आए और एग्रीकल्चर डिपेंड्स और एग्रीकल्चर के बेसिस से पूरा का पूरा ह्यूमन सेटलमेंट डिपेंड करता है. तो अब एग्रीकल्चर पूरे वर्ल्ड में फैला, गेटिंग इट, बट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने के तरीके पूरे वर्ल्ड में अलग अलग है, गेटिंग इट. और एग्रीकल्चर के लिए अप्रोचेस पूरे वर्ल्ड में अलग अलग आए. ओके, जस्ट होल्ड ऑन द नॉलेज. नॉलेज ये है बस, ये तीन चीज याद रखिए. सबसे इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर सिविलाइजेशन. If I say that agriculture civilization depends on land, agriculture civilization depends on water. आप इंडिया के केस में देखिए तो you will find that one is dry land and another is wetland. ड्राई लैंड का जो एग्रीकल्चर है इंडिया में जहां भी फॉलो होता है, लुक एट दैट सोसाइटी विच फॉलोज एग्रीकल्चर इन ड्राई लैंड एंड लुक एट दैट सोसाइटी विच फॉलोज एग्रीकल्चर इन वेटलैंड. You look for Tamil agriculture, you look for Telugu agriculture, you look for Kerala style of agriculture. You will find a lot of differences in their culture. Are you getting it? Because where is more uncertainty? Dry land. Where is less uncertainty? Wetland. So dry land के people are generally more religious. Can we say this? Try to understand religion का growth जहां से हो रहा है वहीं से politics का growth होता है. और religion और politics के पीछे economics is there.
So whenever you study polity, you cannot separate polity from religion and polity from economy. All these three things will be intertwined. Whenever we will study political theory, we cannot separate religion, we cannot separate economy, we cannot separate polity. Are you getting it? We are going to study three things. इंडिया में पूरे वर्ल्ड में एग्रीकल्चर दो होता है, ड्राई लैंड, वेट लैंड, ड्राई लैंड, वेट लैंड. मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िएगा, सॉरी मॉडर्न हिस्ट्री छोड़िए, मेडिवल हिस्ट्री जब आप पढ़िएगा तो you will study about Cholas. Why there were three kingdoms there in the south, my friend? Cholas, Cheras, Pandyas. Right? Because of the three different geographies. And three different geographies where there was a tussle of agriculture. Why everybody wanted to settle near the Dwab area? Tungabhadra Dwab, right? If you remember Krishna Deva Raya, right? उस समय भी आप देखेंगे कि दो एरिया को लेकर लड़ाई थी. There was always a fight between wetland and dryland, wetland and dryland. राजा चोला का पूरा किंगडम इस एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करता है. पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट है द इम्पोर्टेंस ऑफ रिलीजन. व्हाई रिलीजन इज इम्पोर्टेंट? बिकॉज रिसोर्सेज आर स्कार्स, scarcity is there, and resources are scarce, then there is uncertainty, and uncertainty will give rise to religion, because religion will provide an insurance. Is it clear? And when religion will provide an insurance, after some time your experience turns into faith. What is faith? सोच के देखिए. आप पहाड़ चढ़ रहे हैं, हाँ, थोड़ा दूर हम लोग चढ़ेंगे, बहुत थकान होता है. आफ्टर सम टाइम, आफ्टर मे बी सम 100 meters, 200 meters of पहाड़ पे चढ़ना, our body gets adjusted, और बोलते बोलते हम लोग चढ़ने लगते हैं अचानक से. Yes or no? सीढ़ी चढ़ रहे हैं आप सक्सेस पॉइंट का, सोच के देखिए. 2 फ्लोर चढ़ने के बाद बहुत हालत खराब होता है, लेकिन 2 फ्लोर चढ़ने के बाद तो थोड़ा सा तेजी आ जाता है बॉडी में. जनरली अगर एक दिन में एक ही बार आ रहे हैं आप सक्सेस पॉइंट में, ऊपर चढ़ रहे हैं, तो 2 फ्लोर के बाद आपके बॉडी में तेजी आता है. ऊपर आके अलग बात है, कुत्ते वाली हालत हो जाती है, फाइन. बट मोर और लेस 2 फ्लोर के बाद ऐसा लगता है कि बॉडी खुद से जा रही है ऊपर, जाएगी नहीं ऊपर. क्लाइंबिंग में होगा ऐसा. दिस इज फेथ. अंडरस्टैंड दिस. फेथ क्या है? एक्सपीरियंस इज फेथ. और जैसे ही कोई नया चीज आ जाता है तो दैट फेथ इज क्वेश्चन, एंड द मोमेंट दैट फेथ इज क्वेश्चन, न्यू एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड. देयर इज क्वेश्चनिंग. सो फेथ कैसे आया? रिलीजन का बेसिस पर आया. फेथ को कौन चैलेंज करेगा? जब कोई नया एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा. और जब आपको नया एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, देन देयर विल बी एन इंटरनल क्वेश्चनिंग. एंड वंस देयर इज इंटरनल क्वेश्चनिंग, यू आर नाउ बिकमिंग अ पॉलिटिकल एनिमल. As simple as that. And the moment you question yourself, you keep on questioning yourself, new experience takes place. Now knowledge comes, and when knowledge comes, there is a struggle between knowledge and faith, right? And whenever there is a struggle between knowledge and faith, new political system has evolved. Getting it? Because someone will definitely support both the houses. Someone will support knowledge, someone will support faith. Someone will support knowledge, someone will support faith. Are you getting it? Write some introductory dictations. Heading लिखिए introductory dictations. Introductory dictations. Quickly, you can write that. Civilizations grow at the backdrop of agriculture and at the expense of nature. Civilizations grow at the backdrop of agriculture and at the expense of nature. Agriculture was the earliest knowledge of organization by men. Agriculture was the earliest knowledge of organization. Agriculture was the earliest knowledge of organization by men. And invariably, agriculture took different forms in Europe.
and different forms in Africa and India. Now write a very important paragraph. देखिए, a parallel universe. Change the paragraph and write a parallel universe grew. G-R-E-W. A parallel universe grew on the fringes. A parallel universe grew on the fringes, outskirts, है ना? On the outskirts, on the fringes of agricultural green tracts. On the fringes of agricultural green tracts. देखिए, हरियाली हर जगह नहीं होगी. Cultivable land will not be everywhere. Fine. So on the outskirts of green areas, a parallel system will grow. Getting it? Yes or no? यहाँ पे dry land है ना यार. This is not wetland. This is dry land. Parallel system will grow, known as pastoral civilization. Known as pastoral. P-A-S-T-O-R-A-L. Known as pastoral civilization. Because in these outskirts there was less water. In these outskirts there was less water, but there was less water but enough grasslands. There was less water but enough grassland. अब देखिए, ये जो कंट्राडिक्शन आपको देखने को मिल रहा है ना, this contradiction that you are going to see, what kind of contradiction? Suppose this is green areas. In these green areas, water is there, and obviously water is there, the soil is also fertile. But on the outskirts of these areas, there is water is less because this is dry land, and where water is less, obviously there are grasslands. So more grasslands are there. So obviously pastoral cultivation, pastoral civilization will settle. Who are pastoral? Who moves from one place to another in place of water and water? Yes or no? So यहाँ पर सेटलमेंट होता है किसका? पास्टोरल सिविलाइजेशन का. यहाँ पर सेटलमेंट होता है किसका? एग्रीकल्चर सिविलाइजेशन. पूरे वर्ल्ड में ये सिस्टम देखने को मिलता है, और इसी वजह से there is conflict. Conflict means everybody wants better place for them. Try to understand this. Everybody wants a better place for them. You see the conflict in the southern part of this country. Chola, Cheras and Pandyas. आपको यही देखने को मिलेगा इसमें. Why everybody is going for Tamil Nadu? Because Tamil Nadu में rivers forms deltas, right? सारी rivers जो वेस्ट इंडिया से बह के आती हैं ईस्ट इंडिया में, सारे के सारे rivers they form lot of delta in Tamil Nadu. So Tamil Nadu is more fertile, right? When compared to Andhra Pradesh, modern day जो आंध्र प्रदेश है, हमेशा वहीं पे लफड़ा होगा. This is Andhra Pradesh, this is Tamil Nadu, because the land is not evenly distributed. Okay? So this contradiction, ये जो contradiction है, ये किस चीज का contradiction है? Between abundance and between scarcity, between certainty, between uncertainty. Are you getting it? Yes or no? And this uncertainty, this certainty, this abundance, this scarcity leads to different culture, right? Different social life. You look at North India. Why the culture is not different? Same geography. UP Bihar. Why the culture is not different? Assam में culture क्यों नहीं different है? Same geography है ना? Why North Indians को हम लोग एक यूनिट मानते हैं और क्यों South India को अलग यूनिट मानते हैं? क्योंकि South India में तमिल अलग है, तेलुगु अलग है, मलयाली लोग अलग है. Yes or no? Why there is Kannada अलग है? Why there is so much diversity, my friend? Because of the extensive geography. And geography means agriculture. Civilization agriculture के आसपास ही हमेशा बनेगा. ये जान रहे हैं कि नहीं बात? अगर एग्रीकल्चर नहीं है तो सिविलाइजेशन नहीं है, माय फ्रेंड. सिंपल रीजन. सिंपली इसको इतना समझना है. होगा? फाइन. कंट्राडिक्शन हमेशा किस में है? एबंडेंस और स्कैर्सिटी में. और जहाँ एबंडेंस है वहाँ सर्टेनिटी है, जहाँ एबंडेंस नहीं है वहाँ अनसर्टेनिटी है, और जहाँ अनसर्टेनिटी है माय फ्रेंड, पीपल आर रिलीजियस.
पीपल आर रिलीजियस। इसीलिए जहाँ गरीबी होती है वहाँ धर्म बहुत अच्छे तरीके से फैल सकता है। रीजन इज मेघालय में देयर इज 100% क्रिश्चियनिटी। रीजन इज ह्यूज डिस्पैरिटी इन मेघालय, जबरदस्त गरीबी है मेघालय में। अरुणाचल प्रदेश दैट इज नॉट द केस। सो क्रिश्चियनिटी इज देयर but still people are not all the people are religious. Getting it? They are not religious. People have turned to Christianity but still they are not religious. Reason is they have more scarcity in their life, maybe because of many things, right? Government intervention या जो बोलिए, हमेशा ध्यान रखना है एग्रीकल्चर। एक लाइन और लिखे, पैराग्राफ, राइट? ठीक है। So a potential conflict started between two different culture, that is dry land versus wetland. उसके लिखिए, as there was uncertainty, religion grew. As there was uncertainty, religion grew, and religious insurance took three forms. तीन अलग अलग अप्रोच लिया रिलीजियस इंश्योरेंस समझ रहे हैं ना? रिलीजन will provide an insurance against the uncertainty. You pray to the God, come near to the God, God will solve your problem, right? God can only solve your problem. So religious insurance तीन काम किया। पहला काम किया, रिलीजन ने बोला uncertainty is attributable, means due to. Uncertainty is attributable मतलब होता है due to. Uncertainty is due to a transhuman figure, that is God. सबसे पहले ब्लेम गॉड के ऊपर डालना शुरू करो, है ना? रिलीजन ने तीन काम किया। पहला काम रिलीजन ने किया कि अनसर्टेनिटी को ब्लेम करना शुरू किया। गेटिंग इट? अनसर्टेनिटी को ब्लेम करना शुरू किया किसके ऊपर? एक ट्रांस ह्यूमन फिगर, जो फिगर ह्यूमन से भी बड़ा है, आदमी से भी बड़ा है ना, जो इनविजिबल है। तो रिलीजन ने सबसे पहला जस्टिफिकेशन दिया कि कुछ अदृश्य ताकतें हैं जिसका वजह से इतना अनसर्टेनिटी, इतना ड्रॉट, इतना बीमारी, इतना भूखमरी, इतना गरीबी हमारे यहाँ देखने को मिलता है। तो सबसे पहले एक डाउट क्रिएट किया गया दिमाग में। ओके फाइन। सेकेंड फॉर्म देखिए, द सेकेंड फॉर्म is क्या होगा? God can only save us from the problem or uncertainty. ये दूसरा सॉल्यूशन दिया गया कि पहले तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है किसी ऐसे अदृश्य ताकतों की वजह से, और इन ताकतों का सॉल्यूशन करेंगे गॉड। ये सेकंड फॉर्म लिया गया। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से पॉलिटिकल साइंस का शुरुआत होता है देखा जाए मॉडर्न टाइम्स। थर्ड लिखिए, थर्ड मतलब सॉल्यूशन कौन देगा? सॉल्यूशन भी गॉड ही देंगे। ठीक है, सॉल्यूशन भी गॉड देंगे। उसके बाद काम शुरू होता है। थर्ड काम क्या वो? क्रेडिट टू गॉड एंड ब्लेम ऑन सेल्फ। कुछ हो गया आपके लाइफ में खराब, तो आदमी क्या करता है? मेरा ही किस्मत खराब है, मेरा ही गलती की वजह से हुआ, फिर उस आदमी के ऊपर ट्रस्ट किया। लेकिन आपके जीवन में कुछ अच्छा हो जाए, सक्सेस मिल जाए आपको, तो ये नहीं बोलते हैं ना कि हम मेहनत किए तो हमको मिला। जो खराब पाइएगा, सब कुछ खराब पाएगा, तो क्या बोलते हैं? भगवान की दया से हो गया ना। ये तीसरा काम शुरू हुआ रिलीजन।
means uncertainty is attributable to God, solution is attributable to God, right? Solution is due to God. And third, give the credit to God and take the blame onto yourself. So religion provided an insurance on three factors. Why religion is born? Uncertainty. If there is no uncertainty, we will not go to temples, we will not go to churches. Put this thing very clearly in your mind, okay? Now the stage changes. This is how the civilization started. और इसी सिविलाइजेशन के स्टार्ट में जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िएगा, मेडिवल हिस्ट्री पढ़िएगा, तो आपको पता चलेगा कि राजा चोला ने पूरा एक आर्मी तैयार की इसी बेसिस पे कि वहाँ जमीन है, एग्रीकल्चर की खेती है, वहाँ चलते हैं। और वर्ल्ड में जितने भी किंगडम्स हैं, जितने भी कंफ्लिक्ट्स हुए हैं, वो ड्राई लैंड और वेटलैंड को लेकर हुआ है, राइट? ग्रीन लैंड और ड्राई लैंड को लेकर हुआ है। कंफ्लिक्ट का मेन रीजन यही होता है एग्रीकल्चर, खेती की जमीन। चाहे आप इस्लाम का ग्रोथ देखिए, गेटिंग इट? इस्लाम का ग्रोथ कहाँ हो रहा है? ईरान क्या है? ड्राई डेजर्ट। ये सुनो, और डेजर्ट है ईरान। अरे सुनो, सीधे उसमें लाइक करता है। व्हाई दे वांटेड टू गो एवरीवेयर? रीजन इज ओनली एग्रीकल्चर माय फ्रेंड। सो एंटायर सिविलाइजेशन का सर्वाइवल और एंटायर सिविलाइजेशन का स्टार्ट वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है आपके एग्रीकल्चर पे। और एग्रीकल्चर माने इकोनॉमी, एंड इकोनॉमी gives rise to scarcity, and scarcity gives rise to uncertainty, uncertainty gives rise to religion, and once there is religion there is faith, and that faith is challenged by a knowledge, right? And the moment that faith is challenged by knowledge, new political dimensions comes up, right? So once religion comes, what happens after that, right? Change the paragraph and write. All agricultural decisions started to be guided by moral economy and not by market economy. And not by market economy. And this moral economy is a creation of obstruction. This moral economy is a creation of obstruction within agriculture, right? Moral economy obstruct, OBSTRUCT. Moral economy obstruct the creation of knowledge and reason, knowledge and rationality. Moral economy creates an obstruction between knowledge and rationality. Okay, next point लिखिए कि this contradiction between knowledge versus faith, this contradiction between knowledge versus faith is central. This contradiction between knowledge versus faith is central to the history of Europe. Between 12th and 15th century. Very, very important line. Between 12th and 15th century. उसका देखिए, full stop. The church was very intolerant. At any step. The church was very intolerant
at any step towards construction of knowledge, towards any step towards construction of knowledge, and the Protestants were even burned alive. The Protestants were even burned alive. The Protestants were even burned alive. Now, what is a Protestant? वहीं बगल में ब्रैकेट में एरो मार के लिख सकते हैं आप. Protestants किसको बोल रहे हैं हम लोग? Right? मतलब चर्च बिल्कुल intolerant था. The moment you talk anything of knowledge, church is not happy. And the moment church is not happy, church used to burn that particular people. Whosoever talks of knowledge and not religion, not faith, they were burned. Right? And those who protested were known as Protestants. So Protestants किसको बोलते हैं? वहाँ पे साइड में स्टार में लिख लीजिए. वहीं पे Protestants किसको बोल रहे हैं लिख लीजिए. Protestants said that they can reach to God. Protestants said that they can reach to God without the church. They can reach to God without the church, and they protested against it. They protested against it. Hence the name Protestants. Okay? They can reach the God without the church, and they protested against it. Hence the name Protestants. Fine? अब एक लास्ट पैराग्राफ लिखे 3 लाइन का. इसमें लिखे finally the rise of modern science. Finally the rise of modern science by the 18th century. Finally the rise of modern science by the 18th century introduced an age of enlightenment. An age of enlightenment which ended this conflict. Which ended this conflict, and finally the knowledge triumphed. TRIUMPHED. The knowledge triumphed faith. Finally the knowledge triumphed. TRIUMPHED. Finally the knowledge triumphed faith. Fine. So this was a brief history of Europe. Now I have not delved into Indian history because then we will deviate from our subject too much. Right? So remember the main theme. The main theme is agriculture, uncertainty, religion, knowledge, conflict, enlightenment. Are you getting the process? Remember this process. This is how the civilization has evolved, and this is how the present day world order evolved. ग्रीस में भी यही फेथ सिस्टम था. ग्रीस का जब हम पढ़ेंगे ना, when we study about Greece, so we will study about the faith system of Greece. We will study about the knowledge system of Greece, right? और ग्रीस में नॉलेज किसने दिया? ग्रीस के मॉडर्न डे में नॉलेज किसने दिया? प्लेटो ने दिया, एरिस्टोटल ने दिया, राइट? तो हम लोग पढ़ेंगे उसमें ग्रीस में कौन कौन लोग ऐसे निकलकर सामने आए. इंग्लैंड में जब ये डार्क एज चल रहा था, डार्क एज समझ रहे हैं? द एज ऑफ रिलीजन, राइट? द एज ऑफ फेथ. जब ये एज ऑफ फेथ चल रहा था, तो हु रोट, हु बिकेम a leader, who became a torch bearer of knowledge? So Martin Luther King became a torch bearer of knowledge, right? Thomas Hobbes was writing, John Locke was writing. ये लोग क्या है? ये लोग नॉलेज लेकर आ रहे हैं. Getting it? तो हम लोग एंशिएंट ग्रीस जब पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे एंशिएंट ग्रीस में फेथ सिस्टम कैसा है, एंशिएंट ग्रीस में नॉलेज सिस्टम कैसा है. एग्जाम में नॉट इंपॉर्टेंट डायरेक्टली, राइट? जस्ट वांटेड यू टू नो दिस आइडिया अबाउट. अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स. ओके, तो राइट, types of modern day, types of state, types of state. Fine. उसमें लिखें
there are four different types of, there are four different types of historical international systems. There are four different types of historical international system. First one is independent state system. Independent state system. इसमें राइट 2 लाइंस, नथिंग मच. इसमें लिखे it is a sovereign political entity. It is a sovereign political entity which has the right to make both foreign policy and domestic decisions. Fine. Now, जितना भी इंडिपेंडेंट स्टेट सिस्टम हुआ है वर्ल्ड में, इसका सिंपल मतलब क्या हुआ? जैसे दिस इज कंट्री ए, दिस इज कंट्री बी, दिस इज कंट्री सी. अगर ये इंडिपेंडेंट स्टेट सिस्टम है तो इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन बी. ओके, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन सी. It can take its own foreign policy decision, it can take its own domestic decision, and no superior power is recognized. Okay, no superior power is recognized. Okay, remember it. Features, write some features. 1 2 features लिखिए बस. features of independent state system. first point लिखिए उसमें no superior power is recognized. Full stop. Every state is equal. Third, a rising power may be seen as a threat. A rising power may be seen as a threat. A rising power may be seen as a threat to the independence of other states. To the independence of other states. Now, see my friend. बहुत इंपॉर्टेंट है फीचर्स, घर में पढ़ेगा तो दिमाग में बैठ जाएगा. यहाँ पे स्टेट्स का मतलब क्या हुआ है? स्टेट्स का मतलब यहाँ पे अरुणाचल बिहार नहीं है, राइट? स्टेट्स का मतलब हुआ कंट्री होगा. और पॉलिटिकल साइंस में स्टेट का बहुत सिंपल डेफिनेशन है. What is a state in political science? You must have a boundary area. Area must have population. People must have government, and government must be sovereign. Sovereign means fully independent government. So present times में can we say that we are independent states? Right? Every state, every country is independent. Right? Every country is independent in its own decision making. And a rising power may be seen as a threat to the independence of other states. Last point इसमें, last fourth feature, सबसे important feature लिखिए. In order to counter this rising power, a counter alliance can be made by other independent states. ये चार फीचर ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है? इंडिपेंडेंट स्टेट सिस्टम में ये चार सिस्टम याद रखिएगा. एंशिएंट हिस्ट्री में कौन-कौन से स्टेट इंडिपेंडेंट थे, हम लोग जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तब तो पता चलेगा. तो जस्ट रिमेंबर दिस क्लासिफिकेशन एज ऑफ नाउ. डन. नाउ सेकंड लिखिए हेजेमोनिक स्टेट सिस्टम. हेजेमोनिक
hegemonic state system. इसमें राइट by hegemony it means that one or more states dominate the system and they set the rules of the game. They set the rules of the game. देखिए अभी लिखिए मत, सुनिए मेरी बात। हेजेमोनी पूरा का पूरा हमारा सिलेबस में मेंशन है, सेक्शन 1 में, सेक्शन A1A के में hegemony is mentioned in our syllabus. Okay, power, hegemony, we have to study about hegemony in detail. Abhi just know the casual meaning of hegemony because we have not started with the syllabus. Okay, don't worry, things might be complex here but it is not required. What is required वो dictation जो आपको हम एक दो पॉइंट यहाँ करा रहा है उसी में बस वो important है। हेजेमनी का मतलब होता है एक दो आदमी इतने पावरफुल हैं आपके ग्रुप में, आपके दोस्त लोग में, जिनके पास बहुत पैसा है, वो आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर देते हैं क्योंकि कार उनका पास है, राइट? तो अगर वो कुछ बोल दें तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट आदमी लोग, हम लोग जो वो बोलता है आदमी करने लगता है। तो हेजेमोन बनने के लिए आपके पास रिसोर्सेज होना पड़ेगा ना। तो कुछ ऐसा सिस्टम भी देखा गया जहां पे 2-3 लोग बहुत पावरफुल थे, है ना, और वो लोग बाकी सारे स्टेट्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। दे आर इन्फ्लुएंसिंग डायरेक्टली इनडायरेक्टली, राइट? पीपल आर गेटिंग इन्फ्लुएंस, होता है, हम लोग भी इन्फ्लुएंस होते हैं यार, fine, we all are influenced also by the hegemony. So hegemony system 2-3 तरह का होता है, लिखिए उसमें एक लाइन लिखिए। hegemony is of 3 variety. First is unipolarity, where a single dominant state is controlling and dominating. Example, United States after the collapse of USSR or Russia, United Nations after the collapse of USSR, that is after 1990 या in 1990s होगा ना। अभी क्या है नहीं है इसे हम लोग पढ़ेगा बहुत अच्छे से। अभी के हिसाब से एग्जांपल बस याद रखें, नहीं भी याद रखने से कोई बात नहीं, हम लोग वी विल कम बैक टू दिस फर्स्ट क्लास, राइट? जब भी हम लोग पॉलिटिक्स में कुछ पढ़ेंगे हम आपको यहाँ पे रेफरेंस लेकर आएंगे, होगा ना। तो यूनिपोलर मींस यूनि मींस वन, पोल मींस वन पोल। तो जब भी वर्ल्ड सिस्टम में कोई एक आदमी बहुत पावरफुल हो जाता है और पूरे वर्ल्ड के जितने भी स्टेट्स हैं सबका फॉरेन पॉलिसी इन्फ्लुएंस करने लगता है। Getting it? What happens in a hegemonic system? When one hegemonic partner, 2 hegemonic partner, 3 hegemonic partner, they directly influence the foreign policy of the different countries. Okay? Features लिखिए, features. यूनिपोलैरिटी का नहीं रुकिए, अभी 3 वैरायटी लिखे ना, 3 वैरायटी के बाद यूनिपोलैरिटी के बाद दूसरा लिखिए, सेकंड बाइपोलैरिटी। बाइपोलैरिटी लिखिए। बाइपोलैरिटी मींस डुअल हेजेमनी।
Bipolarity means dual hegemony. Dual hegemony. Bipolarity means dual hegemony. That is two dominant states such as USA and USSR during 1945 to 1991. Example, USA and USSR during 1945 to 1991. देखिए, जब तक USSR है, there was Cold War going on, और जब कोल्ड वार चल रहा है तो USA is one block, USSR is another block. USSR इंडिया के फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है, और USA पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर रहा है. तो वहां पे पाकिस्तान और इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुए, ठीक है, बिकॉज उनके फॉरेन पॉलिसी डोमिनेट किए जा रहे हैं किसके द्वारा? अ वेरी स्ट्रॉन्ग पावरफुल बॉडी. अरे ठीक है, सो देयर आर नॉट वन. अगर एक होता तो यूनिपोलैरिटी बोलते हैं, दो है तो बाइपोलैरिटी या डुअल हेजेमनी बोलते हैं, ठीक है. ये तो हो गया मॉडर्न एग्जांपल. और एंशिएंट टाइम्स का एग्जांपल. सेकंड एग्जांपल लिखिए. एग्जांपल एथेंस एंड स्पार्टा इन एंशिएंट ग्रीस. In ancient Greece, 5th century BC, and Athens versus Sparta in ancient Greece. Okay, ये रियल स्टोरी है. ये वार का आप पूरी मत समझिए कि ये जनरल मूवी का स्टोरी है, राइट. ये दैट मूवी इज नॉट ऑब्वियसली मूवी तो उस समय तो कोई नहीं रहा होगा, बट एथेंस एंड स्पार्टा की बहुत पुरानी कहानी है और यहीं से प्लेटो और एरिस्टोटल का जन्म होता है. गेटिंग इट? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो वहां पे भी हेजेमोनिक सिस्टम देखने को मिला था, डुअल हेजेमनी. थर्ड लिखिए मल्टीपोलैरिटी. मल्टीपोलैरिटी, मल्टी मल्टीपोलैरिटी में लिखिए देयर इज मोर देन three states. There is more than 3 states dominating international relations. Example, the five great European powers. Example, the 5 great European powers after 1815, such as Britain, France, Russia, Austria and Prussia. ये 5. अब क्या था 1815, क्या नहीं हुआ था, ये अभी की कहानी नहीं है ना. जस्ट राइट इट इन एग्जांपल, यू विल सी व्हाट हैज हैपेंड देयर लेटर ऑन व्हेन वी कम टू दैट पार्ट. ये एग्जांपल के तौर पे याद रखिए. ओके, मल्टीपोलैरिटी वाज देयर. और उसमें जर्मनी भी ज्वाइन किया एंड इटली एंड जर्मनी ज्वाइन आफ्टर 1871. और ये लोग बहुत एक डेडली पावर फोर्स माने जाते थे 19th सेंचुरी में. ठीक है, ये 5-6 लोग की जो ग्रुप हुआ करता था और ये 5-6 लोग मिल के पूरा देश में जितना भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स उस समय होता था, जो भी उस समय छोटे मोटे स्टेट्स थे, उसको ये लोग गवर्न करते थे. कुछ एक्सपर्ट्स लोग कहते हैं कि आज के डेट में देयर इज मल्टीपोलैरिटी आल्सो, राइट. आज के डेट में किस तरह का सिस्टम हमको देखने को मिलता है आज के डेट में? आर द कंट्रीज इंडिपेंडेंट? यस. तो कैन वी से देयर इज यूनिपोलैरिटी नाउ? क्या अमेरिका के बाद इंडिया मानता है? क्या अमेरिका के बाद चाइना मानता है? क्या चाइना के बाद हम मानते हैं? क्या हम हमेशा रशिया के बाद मानते हैं? नहीं मानते हैं ना. तो क्या आज के डेट में कैन वी से दैट टुडे देयर इज मल्टीपोलैरिटी आल्सो? यस और नो? बोल सकते हैं ना. तो डिपेंड करता है कि हम लोग किस जगह पे बिलोंग करते हैं. अगर आप अमेरिका या चाइना में बिलोंग करते हैं
और अमेरिका और चाइना की इंटरनेशनल बुक्स को पढ़ते हैं या वहां के लिटरेचर को पढ़ते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि आज के डेट में दो ही पावर है बस, दैट इज प्रेजेंटली देयर इज द वर्ल्ड इज बाइपोलर। बाइपोलर मींस चाइना एंड यूएसए। रशिया को पढ़िएगा तो रशिया बोलेगा कि देयर इज ओनली द वर्ल्ड इज बाइपोलर, रशिया एंड अमेरिका, रशिया वर्सेस ऑल, बोलता है ना आजकल। इंडिया कह रहा है कि हमको किसी से मतलब नहीं है, हम लोग खुद का एक खुद पावरफुल कंट्री। तो आज के डेट में डिबेट बहुत मुश्किल है, इसीलिए हम लोग प्रेजेंट टाइम्स को इतना चाइल्डिश एक्ट करके वी कैन नॉट टर्म द प्रेजेंट टाइम एज मल्टीपोलर वर्ल्ड। इसको मल्टीपोलर कब बोलते हैं? इसको हम लोग मोर और लेस इंडिपेंडेंट स्टेट सिस्टम बोल सकते हैं rather than a hegemony. No one is powerful right? You look at Russia, हम लोग को लगा कि क्या क्या नहीं हो जाएगा यूक्रेन में, फाइन, बट स्टिल दे आर फाइटिंग। ये सुनो, वार हुआ, हम लोग लगा ना, इतना सारा हम लोग कहानी सुनते थे इजराइल किसी के साथ वार करेगा तो बर्बाद कर देगा, कितना टाइम लगेगा इजराइल को बर्बाद करने? अरे गेटिंग इट? इतना इंडिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वार में नो वन विंस, गेटिंग इट? तो वी कैन नॉट से प्रेजेंटली द वर्ल्ड इज मल्टीपोलर। वन व्यू इज द वर्ल्ड इज इंडिपेंडेंट स्टेट सिस्टम इज देयर, और जैसे ही इंडिपेंडेंट स्टेट सिस्टम में कोई एक कंट्री ग्रो करती है तो बाकी सारे स्टेट क्या करते हैं? अलायंस बना लेते हैं उसको काउंटर करने के लिए। So present world is either it is hegemonic or the present world is independent. This debate का आंसर हम लोग मिलेगा बाद में इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते समय। यहाँ पे ये पढ़ने का मतलब ये है कि किसी भी स्टेट को, किसी भी सिस्टम को हम लोग के चार वैरायटी पता होना चाहिए जिसके बेसिस पे हम लोग उसको बता सकें, राइट? दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट। नाउ राइट थर्ड लिखिए इंपीरियलिस्ट स्टेट सिस्टम, इंपीरियल सिस्टम। imperial state system या imperialism, whatever you call it. ये बस चार लेंस है, तो आपको बस चार चीज आप सीखे आज आप लोग बस चार चीज सीखे। क्या? तो कितने तरह के स्टेट सिस्टम होते हैं? इंडिपेंडेंट, हेजेमोनिक, इंपीरियल एंड फ्यूडल। ओके, दिस इज द टेक अवे फ्रॉम टुडे। नाउ इंपीरियल में लिखिए एक लाइन, बहुत सिंपल है, हम लोग उसको जानते हैं और अच्छे से लिखिए। It is evident, imperial system is evident in recent centuries. It is evident in recent centuries as well as in ancient times. In ancient times. Full stop. Under imperial system, an empire consists of separate social units. An empire consists of separate social units associated by regular interactions. But one among them asserts, but one among them asserts, asserts political supremacy. And the others simply accept the claim. And the other simply accepts the claim. Now what is the difference between hegemony and imperial system? Try to think. दोनों में क्या डिफरेंस है? Can you tell me the difference?
My question is, you have read about hegemony. Hegemony में क्या हो रहा है? Either one dominates, either two dominates, or more than three dominates, right? उसको hegemon बोलते हैं. Imperialist में क्या हो रहा है? There are group of states interlinked with each other. Generally, one person, one state, one country, one person among them, they asserts political supremacy. I am politically supreme than all of you. Okay, so don't you think it is just like hegemony, or there is a difference? There is a difference, sir. How? In hegemony only there is influence, but in hegemony, sir, there is influence, but in imperialism they acquire. For example, China has taken Zhejiang and so we can say that China is an imperialist. Very good. We are using the term empire here. Imperialism का शुरुआत में हमने empire वर्ड लिखा ना. What is empire? Empire क्या कर रहा है? दूसरे states में अपना कॉलोनी बना रहा है. Getting it? कॉलोनी. Britishers क्या था? Britain क्या था? Empire था. Britishers they made colony in our countries. So that is known as colonialism, right? लेकिन एक वर्ड colonialism से आगे बढ़ के निकलता है जिसको we call it imperialism. Imperialism and colonialism अभी के हिसाब से दोनों को सेम समझिए आप. ब्रिटेन क्या कर रहा है? हमको गवर्न कर रहा है और हमारे यहाँ ब्रिटेन ने कॉलोनी बनाई अलग अलग और अपने अधिकारियों को अपने लोगों को यहाँ जाके सेटल किया है. That is why we call that India is a colony. So उस टाइम पे can we say that present times में या modern times में contemporary times में empires were there and empires they manage their colony? Can that be known as imperialism? Yes, that can be known as imperialism. What is colonialism? Colonialism is a type of imperialism. अब exact differences अभी पढ़ के फायदा नहीं है because Indian government and politics we will understand the difference. Presently understand both are same. देखिए उसमें एक लाइन बहुत important लाइन लिखी. The difference between this and the hegemonic system. The difference between this and the hegemonic system is that in an empire, EMPIRE, in an empire, the dominant state in an empire, the dominant state is more likely to manage the subject colonies or territorial units. The subject colonies or territorial units affairs कर दिए. Territorial units affairs comma appointing local officers comma collecting taxes, maintaining roads, etc. बेसिकली डिफरेंस क्या है दोस्तों? जो सबसे पहला सिस्टम है इंडिपेंडेंट, उसके बाद है हेजेमनी और तीसरा है इंपीरियलिज्म. व्हाट इज द मेजर डिफरेंस? इंपीरियलिज्म में क्या होता है? एम्पायर इज देयर एंड एम्पायर मैनेजेस एंड एंजॉयज सुप्रीमेसी. जैसे एम्पायर ऐसे ही काम करता है ना यार, अपना सुप्रीमेसी बता रहा है ना, हर चीज में हम सुप्रीम है. तुम्हारा डोमेस्टिक और तुम्हारा फॉरेन दोनों हम देखेंगे. बट इन हेजेमनी व्हाट हैपेंस? इन हेजेमनी वन और मोर देन वन स्टेट exerts influence करना और सुप्रीमेसी एंजॉय करना, दोनों में अब डिफरेंस है दोस्तों. ठीक है, इंडिया का एग्जांपल आप ले सकते हैं यहाँ पे, राइट? कैसे आपका सारा का सारा चीज हम मैनेज कर रहे हैं. आज के डेट में प्रेजेंट ऑर्डर में इंपीरियलिज्म ऐसा बोल के आपको नहीं देखने को मिलेगा. फाइन, ट्रू फॉर्म में अब चला गया. इंपीरियलिज्म क्या है? कॉलोनियलिज्म है, ब्रॉडली इफ यू अंडरस्टैंड.
but hegemony is different thing. Independent state is different thing. अब एक चीज समझिए हमेशा, हिस्टोरिकली जो स्टेट इंडिपेंडेंट रहा है वो हेजेमन बनने की कोशिश की है उसने, और हेजेमनी से स्टेट्स ने इंपीरियलिस्ट बनने की कोशिश की है। एवरी स्टेट हैज ट्राइड to shift from an independent state system to a hegemonic state system, and from a hegemonic state system to a imperialist state system, और इसी ट्रांसफर करने के चक्कर में there has been conflict. Other states have tried to stop these states, fine, और जैसे ही दूसरे स्टेट से इनको रोकना चाहा है there is a conflict. What I am trying to say, historically all the three states, right, they wanted to shift from independent to hegemon to imperialism, और इसी wanting के चक्कर में there has been war, there has been conflicts, there has been other people they wanted to stop. Now what is Russia doing presently? रशिया का यूक्रेन में अटैक करने का क्या रीजन है? To save Ukraine from NATO, to save Ukraine from American interference. Why? Because रशिया को ऐसा लगता है कि यूक्रेन has now become a puppet in the hands of America. When you become a puppet in the hands of America, basically Putin is saying that Ukraine is now becoming a colony of USA. Yes or no? So USA is kind of enjoying supremacy in Ukraine. Russia wants to stop this. Yes or no? This is the entire game. Every time there is this game. China is a hegemon. China wants to be an imperialist. Whenever China wants to be an imperialist, other countries they will form an alliance and they will try to beat China. What is Quad? QUAD. Are you getting it? So this is the basic of political science that we are doing. States are classified into three types: independent, hegemon, imperial. Independent, hegemon, imperial. Hegemony is of three variants: either uni, bi, or multi. Is it clear? ये तीन चीजें clear है? Now comes to the fourth. फोर्थ के जगह पर एक काम कीजिए, एक लिखिए SBI रिग्रेशन. SBI is super bank and important. Okay, just like one line in SBI. Observation. टेक अवे क्या है आज की क्लास का? टेक अवे क्या है आपके लिए, है ना? SBI पॉइंट, राइट? Historically there has been a tendency for one or more states to attempt to move. Historically there has been a tendency for one or more states to attempt to move from an independent system to a hegemonic system, from an independent system to a hegemonic system, or to an empire. Comma, and the other states have attempted to prevent this from happening, or forming empires of their own. Prevent them from this. And other states have attempted to prevent this. And other states have attempted prevented this from happening, or forming empires of their own. EMPIRES, or forming empires of their own. Clear? अब एक चीज और देखिए, हर सिस्टम में, हर ज्योग्राफिकल रीजन में ये तीनों चीज एक साथ रहे हैं, ये तीनों चीज एक साथ डिक्लाइन हुए हैं. ऐसा आप नहीं बोल सकते हैं कि यूरोप में एक ही सिस्टम एक बार में रहा है. यूरोप में ये तीनों तरह के सिस्टम देखने को मिले हैं. गेटिंग इट? मींस ये पैरेलल सिस्टम है तीनों के तीनों, और ये पैरेलल सिस्टम तीनों के तीनों मॉडर्न टाइम्स में चले आ रहे हैं, एंशिएंट टाइम से. और आपस में जब ये लोग चेंज करते हैं तो देयर इज मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट.
और जब भी किसी में लीडरशिप का क्राइसिस हो जाएगा, जैसे अगर हेजेमोनी में लीडरशिप का क्राइसिस हो गया तो देयर इज वल्नरेबिलिटी, एंड वल्नरेबिलिटी होगा तो वापस से स्टेट अपना पीछे घुस जाएगा। गेटिंग इट? समझ रहे बात? लीडरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, power is very important again, hegemon is very important again, and all these topics we have to study in paper 1A, power hegemony, ये हमको पढ़ना है। और उस केस में हम लोग को ये सब टर्म्स अगर पता है पहले से तो we can use this as an example, because one question will be asked and we have 2-3 examples. Getting it? So what are the famous example of imperial world order? देखिए, example of imperial state system, example of imperial state system is the systems of Assyrian Empire, comma Persian Empire, Roman Empire, मैसेडोनियन एम्पायर। एम्पायर में यू वाला मत लिखिएगा, एम्पायर है ना, मैसेडोनियन एम्पायर, एम्पायर नहीं एम्पायर। अब देखिए असीरिया एम्पायर कहाँ है? मॉडर्न डे ईरान। और जब असीरियन एम्पायर का डिक्लाइन हुआ तो असीरियन एम्पायर की जगह पे आया पर्शियन एम्पायर। ठीक है, सेम ज्योग्राफी। असीरियन एम्पायर इज ईरान, एंड वंस असीरियन एम्पायर डिक्लाइन, पर्शियन एम्पायर केम टू टेक इट्स प्लेस। ओके, उसके बाद पर्शियन एम्पायर का लड़ाई चला ग्रीस एम्पायर के साथ। ग्रीस वाज नॉट एन एम्पायर, गेटिंग इट? बिकॉज़ ग्रीस में इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट्स वर देयर, इनके पास इंपीरियल सिस्टम था। ग्रीस के बाद आया रोमन एम्पायर, और रोमन एम्पायर का जब डिक्लाइन होता है देन मैसेडोनियन एम्पायर के, जिसमें नेपोलियन का बर्थ शुरू होता है। ठीक है जी, बात समझ रहे हैं? तो ये लोग एम्पायर थे। हम लोग को एग्जाम में असीरियन नहीं पढ़ने की जरूरत, बिकॉज़ असीरियन एम्पायर का बेसिस में ही पर्शियन एम्पायर का ग्रोथ यहाँ देखने को मिलता है। Just let us quickly see feudal system, and after that we start with Persian Empire का history. Okay, fine? अरे yes or no? Now write the fourth system, feudal system. Feudal, very interesting, very important. Feudal state system. इसमें लिखिए फ्यूडल में, राइट? Power is claimed by a diverse group of governmental units including kings, barons, trading business houses, and pope. Pope means the central authority in a Christian Catholic Church. Yes or no? Pope. So what is feudalism? Where power is claimed by different government units. Who are the different government units? अब राजा का गवर्नमेंट, आज के डेट का गवर्नमेंट नहीं, राजा का गवर्नमेंट समझना है ना। तो राजा के गवर्नमेंट यूनिट में राजा होता था, राजा के कुछ चाटुकार लोग होते थे, है ना, जो राजा के ऊपर डिपेंडेंट होते थे, राइट? बैरन्स, गवर्नर्स, फलाना ढिमकाना। कुछ जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनको भी थोड़ा पावर चाहिए, गेटिंग इट? और कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ साथ जो रिलीजियस एंटिटी है उनको भी कुछ कुछ पावर चाहिए। क्लियर? अब इंडिया के केस में पोप विल बिकम प्रीस्ट, राइट? टेंपल हेड। पर जनरली यहाँ पे राजा अपने, जो इंडिया का आप एग्जांपल देखिएगा तो राजा ने क्या किया है हमेशा अपने नाम के आगे, हमेशा से गुप्तास के समय से आप देखिए महाराजा धीराज लगाना शुरू किया। गेटिंग इट? हमसे ऊपर कोई नहीं, आई एम द गॉड। ओके, तो इंडिया के केस में जनरली पोप का कंसेप्ट या टेंपल प्रीस्ट का कंसेप्ट नहीं आता है सामने। बट यूरोप में चर्च वाज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यूरोप में एनलाइटनमेंट नहीं हुआ। यूरोप में एनलाइटनमेंट हैपेंड इन द 18th सेंचुरी, लेटर ऑन। अर्लियर
That was the age of faith. And whenever faith is there, darkness is there. Getting it? ये बोलना ठीक नहीं है पूरी तरीके से, but history में we are trying to observe this fact, है ना? I am very sorry. What is a gamosa? बहुत कम लोग याद होगा gamosa, ना? जिसको याद है वो बहुत बढ़िया. Not know. Now उसके write one line more, right quickly. This international system, this नहीं मतलब ये feudal system जो है, this international system dominated the European society from 9th to 14th century. This feudal system dominated the European society from 9th to 14th century, and in this feudal system, power is always decentralized. And the one institution which claimed universal or global jurisdiction was the pre-reformist Catholic Church of Europe, which is presently known as Roman Catholic Church. देखिए 9th से लेकर 14th सेंचुरी के पूरे यूरोप में जो पावर थी, राइट, वो पावर स्टेट्स के बेसिस पे डिफाइन नहीं थी. There were many states in Europe during that time, but states did not have power in Europe during 9th to 14th century. Who has the power? Different kings, they wanted power. Different governors of the king wanted powers. Different businessmen, merchant bankers, right? They wanted power. And the religious authority, that is Pope, the papal authority, it wanted power, right? और सबसे ज्यादा पावर की डिमांड करती थी रोमन कैथोलिक चर्च, जो आज के डेट में जिसको हम रोमन कैथोलिक चर्च बोलते हैं, जहां से पूरा जो कैथोलिक क्रिश्चियंस हैं उनका जो मेन जो चर्च है वो दैट इज रोमन कैथोलिक चर्च, जिसको हम लोग करंट टाइम में प्री रिफॉर्मिस्ट कैथोलिक चर्च बोलते थे. रिफॉर्मेशन नहीं हुआ था उसमें. किस तरह का रिफॉर्मेशन? नॉलेज का रिफॉर्मेशन. गेटिंग इट? नाउ माय फ्रेंड अंडरस्टैंड, एक चीज इससे हम लोग को पता चलती है क्या, कि वर्ल्ड ऑर्डर में, इंटरनेशनल सिस्टम में स्टेट्स आर नॉट अ परमानेंट इंस्टीट्यूशन टू होल्ड पावर. सोच के देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, क्या बोलना चाह रहा हूं आपसे. ये 500 साल तक अगर फ्यूडल सिस्टम यूरोप में रहता है, कहा 500 इयर्स, if 500 years तक फ्यूडल सिस्टम यूरोप में रहता है, तो who is more powerful in feudal system? All of them wants power. Church wanted more power. Is church a state? No, na. Is king a state? No. They are not a state. They are individuals. What is the learning that we have to take it from here? The learning is, state is not a permanent actor in international politics or in the global world order who demands power. Means there are many other institutions other than the states which can have, which can yield, which can manage, which can control power. This is the point that I am trying to raise. Understand this very very important point. SBI लिखे, SBI takeaway, right? SBI takeaway from this. Takeaway क्या है यहाँ से? देखिए, the feudal system reminds us. The feudal system reminds us that
the key actors of international politics. The feudal system reminds us that the key actors of international politics have not always been and in the future may not necessarily be, and in the future may not necessarily be the states. Very important takeaway from the feudal system. Getting it? Very important takeaways. क्योंकि 500 साल तक डोमिनेट किया इन लोगों ने, कोई स्टेट नहीं है, राइट? राजा अलग कहानी, चर्च का अलग कहानी, बिजनेसमैन का अलग कहानी, बैलेंस का अलग कहानी चल रहा है। यानी ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है जो देखने को मिला है। इंडिया में भी फ्यूडल सिस्टम वाज देयर, राइट, वेयर जमींदार्स कंट्रोल एवरीथिंग। राजा लोग गुप्तास के केस में देखिए, जो भी राजा अपना पावर को डिसेंट्रलाइज कर देगा, मतलब बांट देगा, वहां पे फ्यूडल सिस्टम विल बी देयर। फ्यूडल सिस्टम होगा तो क्या होगा? जैसे गुप्तास लोग क्या करते थे, महाराजा धिराज, मतलब देयर वर डिफरेंट राजास और अलग अलग राजाओं के राजा एक, जिसको हम बोलते थे महाराज धिराज। आर यू गेटिंग इट? सो फ्यूडल सिस्टम का ग्रोथ यूरोप में चलता है मेन, पर इंडिया की हिस्ट्री में भी आप देखेंगे कि फ्यूडलिज्म वाज देयर। आर यू गेटिंग इट? इंडिया में भी देयर वर इंडिपेंडेंट स्टेट्स, देयर वर 16 मेजर किंगडम्स, महाजनपदास, फाइन, इंडिपेंडेंट स्टेट्स, बट उसमें भी लास्ट में कौन बचता है? मगध बिकेम वेरी पावरफुल, हेजेमोन, सबको अपने अंदर मिला लिया। और उसके बाद मगध को हम लोग हेजेमोन भी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इंपीरियलिस्ट। तो हिस्ट्री में, पॉलिटिकल हिस्ट्री यही 4 सिस्टम्स में घूमते गई है। और आपस के ट्रांजिशन के बीच में जब लोग दूसरे ने रोकने की कोशिश की है, तो देयर हैज बीन मिलिट्री कंक्वेस्ट, मिलिट्री वॉरफेयर। क्लियर? कंप्लीट? सो दीज आर द 4 सिस्टम। नाउ लेट अस मूव टू द हिस्ट्री। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम पर्शियन हिस्ट्री, राइट? अब एक लाइन ड्रॉ करिए उसमें और लिखिए हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, या हिस्टोरिकल इंटरनेशनल सिस्टम्स। ऐसे कर दीजिए, कैसे कर दिए? हिस्टोरिकल इंटरनेशनल सिस्टम्स, थोड़ा पॉलिटिक्स से भी जोड़ के रहेगा। हिस्टोरिकल इंटरनेशनल सिस्टम्स, देखिए मेन why we are doing this, why are we studying the historical systems? We have to apply the 4 different things that we have learned in different empires. Secondly, we have to see which all actors they play an important role in world politics, which all actors play an important role to define the politics of that particular place, how different states, how different countries are organized together in a way. Are you getting it? Fine. Next, तो सबसे पहले हिस्टोरिकल इंटरनेशनल सिस्टम लिख लिए। किसका हम लोग पढ़ेंगे? पर्शिया का पढ़ेंगे, ग्रीस का पढ़ेंगे, रोमन एम्पायर पढ़ेंगे, इंडियन एम्पायर पढ़ेंगे, साउथ ईस्ट एशिया पढ़ेंगे और यूरोप पढ़ेंगे। डन? ये 6 हम लोग एम्पायर, 5-6 एम्पायर पढ़ेंगे, हमारा काम हो जाएगा। हम लोग एक जो मेन फॉर्डर होता है वो फॉर्डर मिल जाएगा, ठीक है, हमारे सिलेबस में। तो सबसे पहले पर्शियन एम्पायर, एग्जाम के लिए नॉट इंपॉर्टेंट, राइट, बट आगे का कहानी समझने के लिए पर्शिया इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, पर्शियन एम्पायर। फैन, डू यू नीड फैन? Please switch on the fan. Now 2 मिनट सुनिए, फिर 2 मिनट लिखिए, बस 2 लाइन लिखना है, ज्यादा नहीं, पर्शिया के बारे में। Now first of all geography wise पर्शिया को समझिए, right? First of all understand Persia geography wise. There is ईरान, और ये ईरान में है दोस्त पर्शिया, और इसी पर्शियन एम्पायर में पहले था असीरियन एम्पायर। डन? असीरियन एम्पायर छोटा था, पर्शियन एम्पायर थोड़ा और बड़ा। अब यहां अगर ईरान है तो वेयर इज टर्की? वेस्ट और ईस्ट? इधर थोड़ी जाएंगे, ग्लोबल मैप पे समझ के देखिए। दिस इज ईरान, गेटिंग इट? वेयर इज टर्की?
Somewhere here will be Greece. So Greece is there. Here, this is Greece, roughly, and obviously this will be India, right? And Afghanistan and all those things are there. Simply understand this like this. Now, बस समझने के लिए समझना है हमको। तो पर्शिया का जो एम्पायर है, इसमें किस तरह का सिस्टम देखने को मिलता है हमको? क्लासिकल एग्जांपल ऑफ इंपीरियल एम्पायर। पर्शिया वाज एन एम्पायर, नाम में ही एम्पायर है यार, क्या बात कर रहे हैं, नाम में ही एम्पायर है। सो पर्शियन एम्पायर, सो बेसिकली इंपीरियल सिस्टम इज विजिबल हियर। हाउ पर्शियन एम्पायर दे ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स? इमेजिन कीजिए एक कंसेंट्रिक सर्कल्स, जैसे सर्कल 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 सर्कल। पर्शिया ने अपने आप को इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया कंसेंट्रिक सर्कल्स के केस में। डोंट राइट, 2 लाइन लिखाऊंगा बस, हो जाएगा काम। तो पर्शिया का पहले नॉर्थ और साउथ जानना जरूरी है, ईस्ट और वेस्ट जानना जरूरी है। पर्शिया का जो ईस्टर्न बाउंड्री था वो आज के टाइम में, मतलब जो अखंड हिंदुस्तान है, पाकिस्तान वाला बॉर्डर, राइट, सो टिल अफगानिस्तान इट कहीं, और ये जो बाउंड्री है इसका टिल ग्रीस तक ये जाता है। तो ग्रीस से लेकर अफगानिस्तान, मतलब इंडिया का वेस्टर्न बाउंड्री तक पर्शियन एम्पायर था। और पर्शियन लोग अपने एम्पायर को कैसे गवर्न करते थे? क्योंकि ये एम्पायर है, तो एम्पायर करने के चक्कर में सबसे पहला राजा यहाँ रहता है बीच में, और राजा ने अपने आसपास बहुत सारे रेडियस बनाए, दूर दूर 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर, और हर एरिया कंसेंट्रिक सर्कल्स, अलग अलग सर्कल्स अलग अलग लोगों को दिया रूल करने के लिए। Who are these rulers? These rulers are known as governors, और गवर्नर्स बोलिए या सैट्रैप्स। सुने सैट्रैप्स? नहीं सुने तो गवर्नर याद रखिए। जैसे इंडिया है, अलग अलग स्टेट में गवर्नर क्या है? पॉलिटिकल एजेंट होता है सेंटर का, गवर्नर इज पॉलिटिकल एजेंट ऑफ द सेंटर। तो सिमिलरली पर्शियन एम्पायर दे ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स। अब ये भी गवर्नर है तो इस एरिया का तो राजा हो गया, नहीं? इस एरिया का राजा हो गया, इस एरिया का राजा हो गया, इस एरिया का राजा हो गया। तो टर्की का जो राजा था, अब अपने आप को राजा बोलेगा तो शर्म लगेगा, तो ही केप्ट हिज नेम शहंशाह, फाइन। एंड शहंशाह वाज अ शहंशाह ऑफ डिफरेंट किंग्स, डिफरेंट गवर्नर्स, डिफरेंट सेंटर्स। दिस इज हाउ पर्शिया ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स कलेक्टिवली। अब ये जब ऑर्गेनाइज किए अपने आप को, जब आप और बढ़ाइएगा, एम्पायर है, इंपीरियलिस्ट बनना चाह रहे हैं आप, तो ऑब्वियसली अदर्स विल ऑब्जेक्ट टू इट, ऑब्जेक्ट तो होगा ना। अब इंडिया में जब ऑब्जेक्ट कीजिएगा तो इंडिया वाज नॉट अ वन स्टेट, इंडिया में बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स वर देयर, सो फॉरगेट अबाउट इंडिया। कम टू ग्रीस। ग्रीस उस समय कैसा सिस्टम है? ग्रीस इज नॉट एन एम्पायर, ग्रीस इज एंशिएंट ग्रीस स्टेट बोलते थे इसको, और इस स्टेट में क्या था? डिफरेंट डिफरेंट इंडिपेंडेंट स्टेट्स होते थे। तो ग्रीस का सिस्टम अलग अलग छोटा छोटा इंडिपेंडेंट स्टेट्स का था। इसका पर्शिया का सिस्टम एक्सपेंशन वाला था, इंपीरियलिस्ट वाला था। तो जब ये आप इंपीरियलिस्ट हैं तो ग्रीस में घुसिएगा तो व्हाट विल हैपन? दे विल ऑब्वियसली फ्रेम एन अलायंस। क्या पढ़े हम लोग इंडिपेंडेंट सिस्टम में? इंडिपेंडेंट सिस्टम में जब कोई पावर ग्रो करना चाहता है, सो अदर कंट्रीज दे फॉर्म एन अलायंस and they attack that country, right? So Greece and Persia were always in constant struggle, right? Constant struggle. जब ये constant struggle होगा तो सारे लोग मिलकर जब लड़ेंगे तो एक आदमी को कॉमन होना पड़ेगा ना यार, जो लीडर हो, राइट? और जैसे ही एक आदमी इसमें कॉमन हुआ उसका नाम हो गया एथेंस। एथेंस was the most powerful independent state, फाइन। और भी एक और स्टेट था इसमें बहुत पावरफुल था, नाम था स्पार्टा। स्पार्टा का लोग पढ़ना लिखना नहीं जानता था, बहुत अच्छा वॉरियर था, और एथेंस का लोग दोनों था, डेमोक्रेसी थी एथेंस में। तो एथेंस और स्पार्टा मिलके बहुत सारे ग्रीक स्टेट्स के साथ मिलके दे फॉट अ वॉर। पर्शिया वाज डिफीटेड। लेकिन जब कॉमन एनिमी आपका खत्म हो गया तो आपस में ईगो क्लैश विल बी देयर। अब आपस में ये लोग आपस में मर के खत्म हो गए। आफ्टर दैट सो ग्रीक का डिक्लाइन ऐसे हो गया, होना है, फिक्स है, लिखाएगा 2 लाइन, डोंट वरी। ग्रीस का यहाँ खात्मा हो गया। जब ग्रीस का खात्मा हुआ तो कुछ ग्रीक वाले लोग भागा कहाँ? और इधर भागिएगा, विल गो हियर, व्हाई? इन सर्च ऑफ
ड्राई लैंड, वेटलैंड, ड्राई लैंड, वेटलैंड, गेटिंग इट? ईरान अफगानिस्तान की तरफ भागने का कोई पॉइंट नहीं, राइट? इधर भागा है ना, ये लोग इधर भाग रहे हैं, तो अब ग्रीस इधर भागेगा ग्रीस, तो आपको मिलेगा इटली, फाइन। और इटली के बीच में देयर इज रोम, तो रोम की भी कहानी यहीं से जुड़ी हुई, रोमन एम्पायर। और रोमन एम्पायर में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, उसका बाद रोम का भी फॉल होता है, और रोम के फॉल के बाद बाइजेंटाइन एम्पायर, बहुत सारा एम्पायर आया, लास्ट में सारा का सारा एम्पायर खत्म और नेपोलियन का बर्थ होता है, मैसेडोनियन एम्पायर के, गेटिंग इट? तो वो फर्दर और उस तरफ आप जाते हैं, तो कहानी यहीं से शुरू होगी इस एरिया से। इंडियन एम्पायर, हम लोग इंडियन एम्पायर अलग पढ़ेंगे, राइट? Once we study this European part, then we come to the what is happening beyond the Hindu Kush mountains. Beyond the Hindu Kush mountains means what is happening to the east of Hindu Kush mountains, right? What is happening to the east of Afghanistan? तो उसमें आपको इंडियन एम्पायर अलग पढ़ना है, साउथ ईस्ट एशियन एम्पायर अलग पढ़ना है। पिक्चर क्लियर है? नाउ पर्शियन एम्पायर में 2 लाइन लिखिए, राइट? The Persians were quite good. The Persians were quite good. GWD. Good की जगह बहुत सारा वर्ड है, बाद में हम लोग देखेंगे उसको। The Persians were quite good at assimilating. The Persians were quite good at assimilating local customs. Assimilating local customs that eased the efficiency and expansion of Persian Empire. That is the efficiency and expansion of Persian Empire. Full stop. In order to communicate more effectively, the Persians used a common language. That is Aramaic. The Persians used a common language, that is Aramaic. Next, the core territory, this is the core territory, है ना? The core territory was, you can say, directly administered. The core territory was directly administered. The core territory was directly administered, and as we move away from the capital, the control was decentralized. To stop. And the other territorial areas were made quasi-autonomous, and in order to solve the apprehension of revolt, apprehension means शक, है ना? In order to solve the apprehension of revolt from these autonomous units,
satraps, satraps, satraps slash governors, satraps slash governors were brought from outside, or were chosen from the royal family only, were chosen from the royal family only. Were chosen from the royal family only. royal family मीन्स राजा का परिवार, है ना। अब देखिए कितना खूबसूरत सिस्टम है। कब? बिफोर क्राइस्ट, राइट। और आज के डेट में हाउ द गवर्नर्स आर अपॉइंटेड इन इंडिया? A governor must be selected from outside the state in India. The governor cannot be from the same state, and governor comes from the royal family, right? So who is the royal family? Everybody is मोदी जी का परिवार, fine. So governor present times. Try to understand. ये सब क्या है? ये सब lessons है administration का. These are the lessons of politics जो पर्शियन एम्पायर हमको सिखा के गया है। And more or less रिवोल्ट ना हो इसके लिए बाहर से गवर्नर लाए जा रहे हैं, राइट। आर्मी दी जा रही है, ट्रेन किया जा रहा है, चांसेस आर देयर ऑफ रिवोल्ट, बट इन ऑर्डर टू कंट्रोल दैट, यहाँ का जो बॉस है, ये जो शहंशाह है, बॉस किसको बना रहा है? या तो किसी बाहरी को वेस्ट से लाके ईस्ट में रख रहा है, ईस्ट को लेके वेस्ट में रख रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, और या तो रॉयल फैमिली से किसी को बना रहा है। आर यू गेटिंग इट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। यहाँ पे हम लोग जब एग्जांपल लिखेंगे, राइट, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स जब एग्जांपल लिखते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पेपर 1 का है ना। तो पेपर 1 में कैन वी गिव एग्जांपल्स ऑफ पर्शियन एम्पायर्स, कैन वी गिव एग्जांपल ऑफ ग्रीक रोमन स्टेट? यस, वी विल गिव, बट फर्स्ट फॉर दैट यू हैव टू नो ना, यू हैव टू नो द सिस्टम। ओके, नाउ राइट नेक्स्ट लाइन चेंज करके लिखिए, एक लाइन और लास्ट लाइन लिखिए। टू अकोमोडेट रीजनल एंड कल्चरल डिफरेंसेस, to accommodate regional and cultural differences across the far-flung empire, to accommodate regional and cultural differences, to accommodate regional and cultural differences across the far-flung empire, मतलब बहुत फैला हुआ empire, across the far-flung empire, local administrative customs, local administrative customs were generally adopted without change, were generally adopted without change. बहुत सुंदर लाइन है। Can you resemble 6th schedule with this? सोच के देखिए। When the local customs are different, can you associate this with 6th schedule का system that we have in this country? Tribal areas are governed separately by separate law. Scheduled areas, tribal areas are there in this country. Persian Empire adopted this system. और बिना change के वो local laws को मान गए। You go to 6 schedule areas in Meghalaya, local laws are applicable. Indian constitution is not applicable. They have a separate judicial system known as village council. और 6 schedule में जो village council है, उसका decision को आप सीधे high court में challenge कर सकते हैं। मेघालय में there is no district court, my friend. Getting it? वहां पे विलेज काउंसिल इज द कोर्ट, और विलेज काउंसिल का पनिशमेंट सजा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पीनल कोड, आईपीसी, टीपीसी के तहत नहीं होता है, राइट। द विलेज काउंसिल ऑफ मेघालय कैन पनिश, मृत्युदंड भी दे सकती है, मृत्युदंड, और वो मृत्युदंड सीधे मेघालय हाई कोर्ट में जाता है। फाइन, मींस नो जुडिशरी इज देयर लोकल लेवल। तो क्या आज के डेट में जो 6 शेड्यूल एरियाज है, राइट, कल्चरल डिफरेंसेस हैं देयर आर, और इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया? रिकॉग्नाइज किया है उन कल्चरल डिफरेंसेस को। दैट इज व्हाई वी स्टडी पॉलिटिकल साइंस। वी स्टडी द पॉलिटिकल साइंस में हिस्ट्री टू गेट द बेस्ट आइडिया व्हिच वाज देयर। ऐसा नहीं था कि कमी नहीं है, बहुत कमी थी, लेकिन हम लोग कमी नहीं इंपॉर्टेंट है ना हमारे लिए, राइट। कमी थी तभी तो नहीं सर्वाइव किया, कमी थी तभी तो बाकी राजा ग्रेट नहीं लगते, और अशोका और जो हमारे यहाँ जो अशोका द ग्रेट बोलते हैं ना हम लोग, और अकबर द ग्रेट बोलते हैं, और तो किसी को ग्रेट हम लोग नहीं बोलते हैं। यानी बाकी राजाओं में कमी ज्यादा थी, इन राजाओं में कमी कम थी, इनका एम्पायर बहुत ज्यादा था अशोका का।
उसी तरीके से पर्शियन एम्पायर में जो बेस्ट पार्ट है, क्या बेस्ट पार्ट है समझना है इसको ध्यान से। रीजन्स को ऑटोनॉमी दी गई। वास्टी ऑटोनॉमी मींस आधा अधूरा ऑटोनॉमी दिया गया, राइट। वहां पे आपको कंट्रोल नहीं किया जाएगा, लेकिन गवर्नर का कंसेप्ट है, गवर्नर बाहर से आता है रिबेलियंस को रोकने के लिए। उसके बाद लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव कस्टम को कैसे इज्जत देना है, ये पर्शियन एम्पायर से हमको सीखना है। कहां पे यूज करना है इस चीज को, वेयर कैन वी यूज दिस, इन आवर सब्जेक्ट लेटर ऑन, इन आवर आंसर्स वी कैन यूज, राइट। हम लोग लिख सकते हैं उसमें कि वी कैन टेक अ लेसन आउट फ्रॉम द पर्शियन एम्पायर, वी कैन टेक अ क्यू फ्रॉम द पर्शियन एम्पायर एडमिनिस्ट्रेशन, राइट, एंड वी कैन प्रोवाइड अ सॉल्यूशन here also. So this way we can use the good examples. That is why history is important. Okay. Yes. क्या लिखे लास्ट में? Without change. तो similar to 6 schedule बोल सकते हैं हम लोग, या तो वहाँ लिख लीजिए, नहीं तो दिमाग में है इसको पुट अप करके रख सकते हैं, ठीक है। लास्ट में एक लाइन लिखिए, बस लास्ट लाइन लिखिए। The Persian rulers were successful in avoiding. The Persian rulers were successful in avoiding. The Persian rulers were successful in avoiding conflict among the diverse members. Were successful in avoiding conflict among the diverse members. And after they failed, and conflict among the diverse members के बाद लिखिए, and after they failed to conquer, and after they failed to conquer, after they failed to conquer the Greeks directly, after they failed to conquer the Greeks, to conquer the Greeks directly, they started supporting they started supporting the Greek coalition. They started supporting the Greek coalition. They started supporting the Greek coalition to defeat the they started supporting the Greek coalition to defeat the strongest Greek city states, defeat the strongest Greek city states. कौन था strongest city states? एथेंस एंड स्पार्टा। फाइन, इन लोगों को जब पर्शियन हराने में इम्पॉसिबल हो गया उनके लिए हराना एथेंस और स्पार्टा को, तो बाकी के ग्रीक स्टेट्स को ये लोग पैसा, मिलिट्री, आर्मी ये सब देना शुरू किया कि तुमको हम सपोर्ट करते हैं, तुम ग्रीक और इसको हरा दो। बट पर्शियंस वर नॉट सक्सेसफुल, राइट, टू एन एक्सटेंट। क्या हुआ कहानी, कैसे हुआ कहानी, आज हम लोग नहीं देखेंगे उसको, ठीक, बिकॉज इट विल बी टू मच इंफॉर्मेशन वेरी क्विकली। फाइन, सो आई जस्ट अलाउ यू टू absorb the information. Just write 2 lines last. In conclusion, right? In conclusion, please write just 2 lines only. In conclusion, the Persian approach to empire. In conclusion, the Persian approach to empire. In conclusion, the Persian approach to empire, that is providing internal autonomy, to constituent territorial units, as a means MEANS, as a means to lower military, administrative, financial cost, dash established
practical established a practical administration established a practical administration which was followed by the leaders of the Macedonian and the Roman empires. Leaders of the Macedonian and the Roman Empire. होगा? तो आज हम लोग क्या पढ़े दोस्त? आज हम लोगों ने पढ़ा कि पूरा का पूरा सिविलाइजेशन का जब शुरुआत हुआ तो सिविलाइजेशन की शुरुआत होती है हंटिंग गैदरिंग से, बट हंटिंग गैदरिंग में कुछ है अनसर्टेनिटी जो बहुत ज्यादा है, और उस अनसर्टेनिटी को सॉल्व करने के लिए एक बेटर सिस्टम की तरफ हम लोग गए, एंड दैट बेटर सिस्टम वाज नोन एज पास्टोरल सिविलाइजेशन. पास्टोरल सिविलाइजेशन में भी देयर वाज अनसर्टेनिटी. एक जानवर को अगर बीमारी हो गई तो बीमारी सारे जानवरों में फैल जाएगी. मींस अनसर्टेनिटी इज मोर इंपॉर्टेंट. एग्जांपल इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट. और इस अनसर्टेनिटी को सॉल्व करने के लिए फाइनली वी इंट्रोड्यूस वन सिस्टम नोन एज एग्रीकल्चरल सिस्टम. दैट एग्रीकल्चरल सिस्टम सेटल्ड द एंटायर सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड. एंड जितने भी सिविलाइजेशन है वो एग्रीकल्चर सिस्टम के आसपास रिवॉल्व करती हैं. एग्रीकल्चर इज ऑफ टू टाइप्स, ड्राई लैंड एंड वेट लैंड, एंड देयर इज ऑलवेज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ड्राई लैंड एग्रीकल्चर एंड वेट लैंड एग्रीकल्चर. बिकॉज ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट, राइट, बिकॉज ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट माय फ्रेंड, बिकॉज ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट uncertainty is there. That is why there is a conflict. Because of this conflict history is created, right? And whenever there is uncertainty gives birth to religion, because religion provides insurance. Religion provides three kind of insurance. First, everything is happening because of a superhuman figure, and that can be solved only by that superhuman figure. And if that is solved, credit goes to that superhuman figure, and if that is not solved, the blame is on upon us. So religion became a shelter, and once the religion became a shelter, growth cannot be possible if knowledge is not introduced. So there was again a second conflict between knowledge and faith. Knowledge और faith के बीच में जो conflict हुआ यूरोप में, that conflict took an ugly turn, because whosoever spoke of knowledge, whosoever spoke of reason, whosoever spoke of rationality, the Catholic Church used to burn them. The one who protested became the Protestants. They said that God के पास पहुंचने का अलग रास्ता भी है. इसीलिए you will see the differences in culture of Protestants and the Catholics, right? They worship, they go to the church, but they have different churches. Are you getting it? Why? The culture is different. The culture is different because of dry land, wetland, dry land, wetland. You look at the diversity of the South India. Main thing is scarcity, uncertainty, religion, conflict with knowledge, and knowledge gives birth to enlightenment, right? और ये सारा का सारा ट्रांजिशन जो हो रहा है वार के थ्रू हो रहा है, और इस वार के थ्रू होते होते चार तरह का स्टेट हम लोग पढ़ते हैं. इंडिपेंडेंट स्टेट, हेजेमोनिक स्टेट, इंपेरियल स्टेट एंड फ्यूडल स्टेट. अब ये चारों स्टेट पढ़ने के बाद हम लोग को अगले 3 महीने तक इन चारों स्टेट्स का डेफिनेशन काम आएगा. द एग्जाम्पल्स विल बी यूजिंग एंड द अंडरस्टैंडिंग विल बी अप्लाइंग. ओके, और ये चारों चीज समझने के बाद हमने आज सबसे पहले पढ़ा पर्शियन एम्पायर, और हम लोग कल की क्लास में अपना शुरू करेंगे ग्रीस सिटी, रोमन एम्पायर, इंडियन एम्पायर, साउथ ईस्ट एशियन एम्पायर एंड द मॉडर्न यूरोप. आर यू गेटिंग इट? सो विल सी एन आइडिया ऑफ द हिस्ट्री ऑफ यूरोप एट द लास्ट. थैंक यू सो मच एवरीवन. होप आई मेड सेंस. थैंक यू.